Good morning students, class 12. Welcome to your biology class in which I was discussing the chapter 5 principles of inheritance and variation. The last topics are going on and today I am going to discuss chromosomal disorder. Okay, its totally concept is depends upon mutation. In the previous video I have described the types of mutation. During watching my video, please watch or see the description also, in which I used to describe certain important points and also main YouTube link and playlist of this chapter. Okay, if you have left some videos, then you can watch there. Now after mutation in NCERT book, it is given Mendelian disorders. Okay, Mendelian disorders depends upon point mutation. If you remember the mutation there, then the mutation is of three types: genomic mutation, point mutation and chromosomal mutations. Okay, the Mendelian disorders I am skipping now. I will make further in the future videos I will describe this topic. Today I am discussing the chromosomal disorders because I feel the chromosomal disorders is little bit easy than Mendelian disorders. In Mendelian disorders we have to concentrate focus more on various types. So I will make another video of Mendelian disorders. Today I am discussing chromosomal disorders. Okay. Then in mutation we have studied about chromosomal disorders. Here the chromosomal disorders depends upon the genomic mutation which we have studied in mutation. Mutation में मैंने टाइप्स बताया था, उसमें क्रोमोजोमल म्यूटेशन था जिसमें डिलीशन हो रहा था, डुप्लीकेशन हो रहा था, इन्वर्शन हो रहा था और भी हो रहे थे, ट्रांसलोकेशन हो रहा था. तो वो क्रोमोजोमल म्यूटेशन पर्टिकुलर क्रोमोजोम के म्यूटेशन पे हम नहीं बात कर रहे हैं. हेयर द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स इज रिलेटेड टू द जीनोमिक म्यूटेशन. आप रिवाइज कीजिए म्यूटेशन को. जीनोमिक म्यूटेशन जो है वो दो तरह के थे, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. यूप्लॉइडी जो है वो क्या होता है, इसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीनोम. इन द ऑल एग्जांपल्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट होमो सेपियंस, दैट वी द ह्यूमन हु हैज़ 46 number of chromosomes means 23 pairs. 23 pairs, and it means the gametes are formed with 23 chromosome and 23 chromosome. Okay, concentrate here that in all the mutations and disorders we are discussing about Homo sapiens. In Homo sapiens total number of chromosome is 46, means it has 23 pairs. One set means 23 pairs means 23 two sets. One set comes from father and one set comes from mother, and this is what? This is the gamete. ये क्या है? Gamete है. Gamete, mother gamete और father gamete. Okay, ये gamete है. और जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये मिलते हैं तो ये जाइगोट 46 एस्टेब्लिश हो जाता है. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाइगोट में आ जाएगा. अब आप एक बात ध्यान दो, that we have 46 number of chromosomes, means every somatic cells, not the germ cells, means not the gametes. gametes में केवल एक सेट रहेगा. ओके, ओनली वन सेट, क्योंकि वो गैमेट है और फिर उसको अपोजिट गैमेट से मिलके जाइगोट बनना है. तो गैमेट में हमेशा वन सेट ऑफ क्रोमोजोम रहेगा और होमो सेपियंस का वन सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या है? 23 है. हम बात कर रहे हैं किसी सोमैटिक सेल्स का. तो सोमैटिक सेल्स में 46 जो क्रोमोजोम्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 रहेंगे, उसमें 44 जो है और प्लस अगर ये फीमेल है तो XX होगा और अगर ये मेल है तो क्या होगा? XY. ओके, दिस XY एंड XX इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स, इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम्स.
and this 44 of both male and female are called autosomes. मैं हर वीडियो में इसके बारे में बता रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है. Autosomes 44 number and XX is the sex chromosome. Autosomes 44 in female XX and autosome 44 XY in male sex chromosome. Okay. अब अगर हमारा जीनोमिक सेट जो है N हैप्लॉइड नंबर 23 है, ओके, अगर ये कंप्लीट सेट ही डबल ट्रिपल या टेट्रापल या डबल ट्रिपल या 4 गुना 4th टाइम अगर बढ़ जा रहा है, देन इट विल बी यूप्लॉइडी. मीन्स कंप्लीट सेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू और कंप्लीट सेट इज बीइंग डबल्ड और ट्रिपल्ड और 4th टाइम, then it is called euploidy. This type of mutation generally occurred in plants. Here we are not discussing this type. In human it is rare in case or absence also may be said, but in plants it is generally discussed. If you will do higher studies in botany, there you will read the euploidy conditions in plants, and in plants various varieties are developed by doing this type of mutation. And in this type of mutation the whole genomic constitution or the whole genomic chromosome get double or tripled. Here we are discussing aneuploidy. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में हम जितने भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो एनीप्लॉइडी से रिलेटेड है. ये सारा बात मैं म्यूटेशन में बता चुकी हूँ. एनीप्लॉइडी मीन्स जो हमारा सेट है n इज इक्वल टू 23 है हमारा सेट, ओके, n इज इक्वल टू 23 है, इसमें ये गैमिट है, ओके. तो अगर ये मेल गैमिट है, तो 22 इसमें ऑटोजोम्स होंगे और प्लस y होगा, और अगर ये फीमेल गैमिट होगी तो 22 प्लस x होगा. तो हमारा जो हैप्लॉइड नंबर है गैमिट ये n है, ओके. हियर वी आर डिस्कसिंग एनीप्लॉइडी इन विच देयर मे हैपन 2 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. गेन कैन हैपन और लॉस. हो सकता है कि हमारा जो सेट है 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम, इसमें इस जीनोमिक सेट में एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए या एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम डिलीट हो जाए, या 2 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाए या 2 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम डिलीट हो जाए. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर गेन कर रहे हैं तो 23 हमारे गैमेट में ऑलरेडी क्रोमोजोम्स हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, अगर गेन होगा तो +1 हो जाएगा. हमें डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ेंगे तो ये गेन का कौन सा नंबर क्रोमोजोम गेन हो रहा है ये डिसऑर्डर के लिए याद रखना है, ओके. एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो मैं डिटेल बताऊंगी. मीन्स कौन से नंबर का क्रोमोजोम एक और ज़्यादा हो गया, ओके. टेट्राजोमी में क्या होगा, जो सेट है उसमें किसी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 2 और बढ़ जाएंगे, गैमेट्स में 2 और क्रोमोजोम बढ़ जाएंगे. तो जब वो नॉर्मल दूसरे अपने अपोजिट सेक्स वाले गैमेट से टैली करेगा तो ये 2 और बढ़ गए और वो वहाँ पे, तो क्या होगा, क्रोमोजोमल नंबर प्रॉब्लम होगी और 4 सेट्स हो जाएंगे. उसी तरह एनीप्लॉइडी जो है वो लॉस के कारण भी हो सकता है. लॉस होगा उसको अगर एक क्रोमोजोम किसी, जैसे गैमेट में 23 क्रोमोजोम्स होने चाहिए, ओके. अब क्या होगा, गैमेट में एक क्रोमोजोम घट जाएगा और नंबर हो जाएगा 22. देन इट विल कॉल्ड एज मोनोजोमी. एंड इन नल्लीजोमी द होल one homologous chromosome disappears. Okay, these were the types of chromosome, and in chromosomal disorders we are concentrating on aneuploidy. क्योंकि यूप्लॉइडी जो है, पॉलीप्लॉइडी के बारे में आपको बुक में दिया है, and it is written that it happens only in plants. So here we are not discussing euploidy and only we are discussing aneuploidy. अब देखो रीज़न है कि ये ऐसा हो कैसे जाता है, मतलब क्रोमोजोम नंबर का नंबर बढ़ या घट कैसे जाता है. द रीज़न है कि क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. आप लोग पढ़े होंगे सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोजोमल सेपरेशन होता है. जैसे नॉर्मल सेल में एक ये क्रोमोजोम है, नॉर्मल सेल में
अब क्या होता है, जब ये एक क्रोमोसोम है किसी सेल का, एक ये क्रोमोसोम है और ये सेल डिवाइड करने जा रहा है, तो ये क्रोमोसोम अपने अमाउंट को बढ़ाता है और क्रोमेटिड्स में 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। ओके, मतलब ये क्रोमोसोम अपने अमाउंट को डबल करके ये अमाउंट को बढ़ा चुका है। और जब सेल सेपरेट करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन तो क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम्स अगर इक्वेटर पे आए, ऐसा एक क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पे आया, एक मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, एक क्रोमोसोम किसी में होता नहीं है, जैसे 4, 5, मैं एक को आपको दिखा रही हूँ। अब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा तो ये आपके इक्वेटर पे आ गया, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज के बाद एनाफेज में ये क्रोमेटिड्स टूटते हैं और फिर ये अपने अपने पोल की तरह खींचे चले जाते हैं। तो आपका दूसरा वाला क्रोमेटिड्स, जो 2 क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद ये एक क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा, और सॉरी सेल के बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ आएगा एक पोल की ओर और इसका एक क्रोमेटिड दूसरे पोल की ओर आ जाएगा। और ये जो क्रोमोसोम्स जो थे, वो जो ये जो क्रोमोसोम था जो कि 2 क्रोमेटिड में बदल गया था, वो दोनों सेपरेट हो गया और फर्दर जैसे पेरेंटल सेल था जिसमें ऐसा क्रोमोसोम था पहले, ये तो सेल डिवीजन के दौरान अपने अमाउंट को बढ़ाया सिंथेसिस फेज में। अब नॉर्मल अगर सेल डिवीजन करेगा तो ये क्रोमेटिड ब्रेक करके दूसरे पोल की ओर जाएंगे और टेलोफेज होगा, और टेलोफेज के बाद सेल साइटोकाइनेसिस होगा और ये डॉटर सेल 2 बन जाएगी। ओके, अब अगर क्या हो कि ये डॉटर सेल में, ये मियोसिस में भी होता है और माइटोसिस में भी होता है। मियोसिस में अगर क्या हो कि इस एनाफेज के दौरान ये क्रोमेटिड सेपरेट ही नहीं कर पाए, ये क्रोमेटिड्स जो बने थे ऐसा वो सेपरेट नहीं कर पाए और पूरा क्रोमोसोम एक साइड खींच गया, तो ये पूरे क्रोमोसोम जो कि अपने डबल अमाउंट में था वो एक में चला जाएगा और दूसरे वाले सेल में कोई क्रोमोसोम ही नहीं आएगा इस पेयर। मानो ये 2 नंबर वाले क्रोमोसोम के साथ ऐसा हो गया। नंबर 2, इसमें हमारे 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे और नंबर 2 क्रोमोसोम्स के साथ ऐसी घटना हो गई। तब आप सोचो कि जब ये गैमेट बना और अपने अपोजिट गैमेट से मिलेगा, तब तो ये क्रोमोसोम उसमें एक्स्ट्रा हो गया और यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम, इस नंबर का क्रोमोसोम नंबर 2 एब्सेंट हो गया। हेयर नंबर 2 क्रोमोसोम कंप्लीटली एब्सेंट और हेयर नंबर 2 क्रोमोसोम्स डबल्स इन अमाउंट। सो इट कैन रिजल्ट इन ट्राइजोमी कंडीशन यहाँ हो गया और लॉस के कारण मोनोजोमी कंडीशन यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ बढ़ गया और यहाँ एक घट गया। और जब ये आपके अपोजिट गैमेट से मिलेगा तो उसमें तो वो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट रहेगा और इसका 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक सेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक घट गया एंड द कंडीशन विल बी मोनोजोमी। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, अब ये अपोजिट वाले से मिलेगा, अपोजिट गैमेट से, और उसमें ये नंबर 2 क्रोमोसोम है, एक सेट है, तो 1 2 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे और कंडीशन हो जाएगा ट्राइजोमी। तो कंसेप्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन का कहाँ से आता है? जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होते हैं वो सेल डिवीज़न के दौरान होते हैं। ओके, सेल डिवीज़न में एनाफेज में क्रोमेटिड्स जो क्रोमोसोम अपने अमाउंट को डबल किए हुए रहता है वो डॉटर सेल्स में बंटते हैं। अगर ना बटे तो किसी एक डॉटर सेल में वो क्रोमोसोम जाएगा ही नहीं और किसी उसके सिस्टर डॉटर सेल में वो क्रोमोसोम डबल अमाउंट में चला जाएगा। उसी तरह आप डिफरेंट हायर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि ट्राइजोमी कब होता है, नलीजोमी कब होता है, ट्राइजोमी एंड मोनोजोमी का तो मैंने आपको दिखा दिया, टेट्राजोमी कब होता है, नलीजोमी कब होता है, और थोड़े डेप्थ जेनेटिक्स में जाएंगे तो होगा। तो वी कैन गिव आंसर हाउ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अकर। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अकर ड्यू टू फेल्योर ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होता है?
due to failure of chromosomal separation during cell division and the particular phase is either एनाफेज और टीलोफेज। मानो टीलोफेज में क्या होगा, अगर टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज हो गया और साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, मतलब सेल डिवाइड ही नहीं किया, तो क्या होगा, ये पूरे जो क्रोमोसोम है जो कि अपने अमाउंट को डबल किए थे तो पूरे डबल अमाउंट हो जाएंगे और वो कंडीशन हो जाएगा यूप्लॉइडी का। पूरा क्रोमोसोम ही इस सेल में डबल डबल हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होता है तब तो सेल डिवाइड होता है और एक से एक सेट जाते हैं, और ये साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं और क्रोमोसोम डबल अमाउंट हो चुके हैं, क्रोमेटिड्स डबल डबल हो चुके हैं, तो क्या होगा, ये सेल का सारा क्रोमोसोम डबल हो जाएगा और यूप्लॉइडी कंडीशन हो जाएगा। और अगर क्रोमेटिड्स सेपरेशन नहीं होता है देन द कंडीशन विल बी एनीप्लॉइडी। So it is the reason behind chromosomal disorders. In 12th we have to read 3 diseases of chromosomal disorders. आप इसको डायरेक्ट बुक से पॉइंट वाइज में नोट्स बना सकते हैं कि जब ये डिसऑर्डर होता है तो क्या सिम्टम्स है, वो आपके बुक में दिए हुए हैं। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, यू कैन रीड द बुक एंड राइट द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। I am discussing what is happening with the chromosome in this condition. मैं डिस्कस कर रही हूँ कि इस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स के कंडीशन में क्या हो रहा है क्रोमोजोम के साथ। हमारा पहला डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। Very animated videos and several others videos are provided in YouTube channel. You can contact to show that symptoms naturally. What is happening in Down syndrome? See, this Down syndrome is trisomy condition. ट्राइजोमी में अब आप देखिए क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इसका मतलब इस जो डाउन सिंड्रोम के का जो व्यक्ति है उसके किसी जो वो बना होगा तो एक गैमेट में ट्राइजोमी हो गई होगी, और ट्राइजोमी मैंने बताया था ना कि किसी भी क्रोमोसोम में हो सकता है, तो ये ट्राइजोमी ऑफ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अक्सर आता है, नीट में भी आता है। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइजोमिक कंडीशन ऑफ विच क्रोमोसोम, देन इट इज 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब हमारा जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम है 21, वो ट्रिपल हो जाता है। ओके, इसका मतलब जब ये गैमेट बन रहा होगा एनाफेज में, इसके क्रोमेटिड्स अलग नहीं हुए होंगे और इसके क्रोमोसोम 2 हो गए, और जब ये दूसरे वाले गैमेट से मिला तो उसका 1 था, ये 3 हो गया। एंड द ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, it is very important to remember, is Down syndromes. Okay, all the symptoms are written in your book that मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, स्वेलन आइज होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होता है, जो फीचर्स हैं आपके ह्यूमन बॉडी के जो फीचर्स हैं वो बिगड़ जाते हैं, पाम ब्रॉड हो जाता है, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड हो जाता है। ये आप सिम्टम्स तो आसानी से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, बट इट कम्स इन एग्जाम. In exams you have to write point wise, that is given in your NCERT. What you have to remember that in this Down syndrome 21 number of chromosome जो है वो एक और हो जाता है। इसका मतलब 21 number of chromosome ट्राइजोमिक कंडीशन में प्रेजेंट रहता है इन डाउन सिंड्रोम। तो क्या होगा, हमारा टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47, क्योंकि इसके सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल रहेगा। अगर ये लड़का रहेगा तो XY, लेकिन इसका जो ऑटोजोम्स है वो 45 हो जाएगा। जनरल कंडीशन में 44 होता है, लेकिन वो 45 हो जाएगा क्योंकि 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 में प्रेजेंट है, तो एक बढ़ जाएगा, और इसका सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। इट इज़ ऑटोजोमिक डिसऑर्डर जिसमें ऑटोजोम्स का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ट्राइजोमिक कंडीशन। ओके, नाउ इसके गैमेट्स अच्छे बनने के चांसेस हैं। आप डेप्थ जेनेटिक्स में जाइएगा क्योंकि इसके XY में प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द सेकेंड इज क्लिंगफिल्टर्स क्रोमोसोम। क्लिंगफिल्टर्स क्रोमोसोम, क्लिंगफिल्टर्स आप ऐसे याद रखिएगा, ये मेल से रिलेटेड सिंड्रोम है। किंग राजा, मैं ऐसे ही याद रखती हूँ कुछ ट्रिकी से। ये मेल से रिलेटेड क्रोमोसोम है। मेल में जनरली ऑटोजोम 44 होता है, प्लस क्या होता है XY, ये मेल है,
नॉर्मल मेल, लेकिन क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम में XXY हो जाता है, मीन्स ये सेक्स से रिलेटेड क्रोमोजोम्स हैं और इसके गैमिट नहीं ठीक ठाक बनेंगे। ओके, इसके क्योंकि इसका सेक्स में ही क्रोमोजोम्स में प्रॉब्लम है। गैमिट जब भी 1-2 गैमिट बनेगा तो वो खराब ही बनेगा और चांसेस बहुत कम है रिप्रोडक्टिव मतलब फर्टिलिटी की। हियर इट इज ऑल्सो इट बिकम्स 47। तो ये भी जो कंडीशन है वो ट्राइजोमी ही है, लेकिन यहाँ ट्राइजोमी कहाँ हो रहा है, किस क्रोमोजोम में हो रहा है, क्रोमोजोम X में हो रहा है। X जो है वो डबल हो जा रहा है और डाउन सिंड्रोम में किसका हो रहा था, 21 नंबर ऑफ 21st क्रोमोजोम में डाउन सिंड्रोम में हो रहा था, ये एक और बढ़ जा रहा था और 21st क्रोमोजोम जो है वो 3 संख्या में प्रेजेंट थी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। लेकिन क्लिन-फ्लिंटर्स जो है वो X जो है उसका X क्रोमोजोम डबल हो जा रहा है और यहाँ ट्राइजोमी ऑफ X क्रोमोजोम है एंड द टोटल नंबर यहाँ भी 47 हो जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए यहाँ XX है तो फीमेल का कैरेक्टर इस मेल में इंक्रीज होगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि एक X 2X आ गया है। तो ये जनरली होते मेल्स हैं, लेकिन इनका जो इनमें स्टेरिलिटी होती है, फर्टिलिटी नहीं होती है। गायनेकोमस्तिया एक टर्म है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, दैट जनरली अकर्स इन फीमेल। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो फीमेल में डेवलप होता है। चूंकि इसमें फीमेल कैरेक्टर होता मैस्कुलिन है, होता मेल है, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। तो क्या होगा, फेमिनिन कैरेक्टर, तो इसके ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज गायनेकोमस्तिया। दैट इज टर्म इज गिवन इन योर बुक एंड इट इज इंपॉर्टेंट टर्म, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन कंडीशंस ऑफ क्लिन-फ्लिंटर्स सिंड्रोम। और स्टेरिलिटी होती है और भी जो होता है आपका, आप बुक से पॉइंट लिख लीजिएगा एंड इसमें यही है द ट्राइजोमी इन X क्रोमोजोम। नाउ द थर्ड वन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है, ये होती फीमेल है, ओके, ये बीमारी होता है फीमेल को, तो उसको जनरली होना चाहिए, फीमेल जनरल होती है XX। जैसे कोई जनरल फीमेल है उसका क्रोमोजोमल नंबर क्या होगा, जैसे मैं हूँ तो मेरे में क्या होगा 44 प्लस XX होगा। लेकिन टर्नर सिंड्रोम्स में क्या होता है, ऑटोजोम्स तो वही होंगे लेकिन एक X क्रोमोजोम एब्सेंट हो जाएगा। तो आप सोचिए अगर एक X क्रोमोजोम अगर घट गया तो ये जो फीमेल है वो अपना फीमेल कैरेक्टर टोटल नहीं शो कर पाएगी और हो सकता है उसमें कुछ मेल कैरेक्टर्स आ जाएं और अपना जो सेक्सुअल फीमेल कैरेक्टर है वो नहीं शो करेगी। यहाँ भी ये स्टेराइल कंडीशन होगा। ओवरी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है, ओवरी जो है रेडुमेंट्री हो जाएगा, मतलब काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाएगा, फंक्शनल नहीं रहेगा। कोई भी ऑर्गन रिड्यूस इन साइज हो जाए और फंक्शन नहीं करें तो उनको रेडुमेंट्री मतलब बचे खुचे कहते हैं, रेडुमेंट्री ऑर्गन हो जाएगा। ओवरी डेवलप नहीं करेगा, रेडुमेंट्री हो जाएगा। फीमेल जो है वो स्टेराइल हो जाएगी और वो रिप्रोडक्शन फर्दर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके सेक्स क्रोमोजोम में ही प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में मेल स्टेराइल हो जाएगा, इस कंडीशन में फीमेल स्टेराइल हो जाएगा। इस कंडीशन इसमें स्टेरिलिटी की बात नहीं है, लेकिन ये इसका ऑटोजोम्स ही इतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि ये और सेवरल बीमारियों से ये ग्रसित होगा और ये उतना शायद बड़ा हो ही नहीं पाए कि वो गैमेट फॉर्मेशन के एज तक या रिप्रोडक्शन के एज तक जाए। तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं क्योंकि ये म्यूटेशन है इन जीनोमिक कंस्टिट्यूशन। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। कंक्लूडिंग द पॉइंट्स दैट वी हैव रेड द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स, why it happens and what are the types of chromosomal disorders. These are the types and it happens because of the absence of separation of chromatids during cell division or anaphase. Now which chromosomal disorders we have to study? Down syndrome, which is trisomy of 21st number of chromosome. It is very important. Symptoms right from the book. Klinefelter syndrome, it is the condition of male in which it has double number of X chromosomes, so it has feminine characters also and gynecomastia occurs.
Turner syndrome, it is a female, but the double X chromosome is not present. One X chromosome disappears and the total number of chromosome becomes 45. So it is a condition of monosomy. ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों ट्राइजोमिक कंडीशन है और टर्नर सिंड्रोम मोनोजोमिक कंडीशन है, क्योंकि इसमें एक क्रोमोजोम जो है वो एब्सेंट है. कौन सा क्रोमोजोम? तो एक्स क्रोमोजोम जो है आपका वो एब्सेंट है. तो इट इज मोनोजोमिक कंडीशन एंड दीज टू आर ट्राइजोमिक कंडीशन. सो इस आपके इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 45 होंगे. इस दोनों में 47 बढ़ जाएगा, इसमें एक घट गया है. Write the symptoms from book. It is easy, and remember also it comes in exam. Which chromosomes is getting disturbed in this disease, you have to remember and read this chapter. If you have any problem, please message me, text me, and read the description also and the link which are given in the description. Okay, thank you.